Words of Wisdom, Gyan Ganga by Virat Hindustan Sangam, our usual talk show at 8 p.m. Indian Standard Time. We will be shortly joined by our today's special guest Sarju Rai from Jharkhand. And before that, we would be having a quick reaction from Dr. Swami on the statement issued by the Under Secretary of the United Nations on some purported statement made by Dr. Swami. So I would request Dr. Swami's reaction to this statement and the background so our viewers and the nation and the entire world knows the fact and the truth of the problem. So with this, I request Dr. Swami to please tell us the background and the whole episode, what happened regarding this so-called statement and the press statement issued by the Under Secretary of the United Nations. Over to Dr. Swami. Well, it's a very interesting situation because this is the first time the United Nations has become political. I myself, at a very early stage in my life, when I was just 23, I was given a very cushy job in the United Nations as part of the economic department. On the recommendation of Professor Simon Kuznets, who was my thesis advisor. And so I know the culture of the United Nations, and that is to avoid all controversies or all stands on political basis unless the UN Security Council or the General Assembly takes this position. And then you can propagate that position. But in this case, a man called Adama Diang, his name is. He's from Senegal in Western Africa. He has this title of Under Secretary General, and he did something very unusual. He issued a press release, and this press release is basically stating it's an attack on the government and Mr. Narendra Modi, saying that the Muslims are suffering a great deal of atrocities, and in fact, as Under Secretary General, his job is to report to the General Assembly on genocidal matters of genocide around the world. And so I think he was trying to prepare a ground to create that the genocide of Muslims is taking place in India. And in that, for no reason I can think of, he brought in a paragraph about me and stating that I had, Subramanian Swami, Member of Parliament, he has stated that Muslims are not equal to Hindus under the Indian Constitution. And that this has, created a situation where the Muslims are made to feel as if they are second-class citizens, something, etc., etc. Try to build a case. Now, I felt this is, and then he also mentioned that I made a speech in Parliament and so on. So I felt that this obviously seems to be motivated because earlier on the same thing, exactly almost the same words were uttered by Prime Minister Imran Khan. Now, why would the head of the government in Pakistan and the high official, one rank below that of Secretary General, go out of his way to drag me into this matter, especially when there is no factual basis for it? I have never said that Muslims or Christians or anybody else are not equal citizens if they are citizens of India. The context in which I said was when a Canadian TV company came to interview me, and I accepted to give an interview on the recommendation of one of our local journalists in India, and on good faith. And that company should have disclosed to us that it is owned by a Pakistani based in Toronto. But it didn't. So this company, spelled VICE, Vice, that took a very long interview of mine. And what they did was release a very small part of it.
in which they did a cut and paste job, in effect, which says the questioner says that Muslims are very apprehensive about this CAA. What have you to say? I mean, don't they have rights? So I thought she was talking about Muslims of Pakistan, because the Indians who are the Hindus, the Christians, the Buddhists, the Sikhs, and the Parsis who came to India and wanted to seek citizenship of India, they came from Pakistan on the grounds that they were suffering from religious persecution. So I said that these are not comparable, because no Muslim from Pakistan has come to India asking for Indian citizenship on the grounds of religious persecution, and that cannot be, because they themselves are Muslims. So why should the Muslim state persecute other Muslims? It made no sense. And anyway, nobody was wanted to come. So the matter is over. He said, but they have a right, equal right. I said, listen, equal right will arise in our constitution according to the Supreme Court only if there's equality to begin with. And I gave the example that there is reservation in jobs and university admissions for scheduled castes in our country, but not for Brahmins and Kshatriyas and Vaishyas. Can we not then say that under the Article 14 of the Constitution of Equality before law, that Brahmins and Kshatriyas and Vaishyas should also get reservation? And the answer is no, because you can't compare these three varnas with the scheduled caste plight. Scheduled caste was suppressed and put down, and therefore we have to make a special arrangement to see that they are given a lift to come and become equal in the future. So therefore you can't compare the two, and they cannot be considered as equals before the law in this respect. So all that was chopped. And when I said that a Muslim coming from Pakistan for any reason like jobs or so on cannot be put on par with a Hindu or a Christian or a Muslim or a Buddhist or a Parsi who's come on religious persecution. So all that was chopped, and what came out in the chopped interview released by this Vice company and shown all over the world was that I said Muslims are not equal to Hindus. And that is what is being repeated. Now, I don't know why they picked on me. I'm not a member of the government. I'm not an office bearer of BJP. But I've been told by my American friends, I've been told by many other friends in other parts of the world, in other countries, that there is a general talk that on the issue of Hindutva, I am supposed to be very articulate and very difficult to defeat in an argument. You remember Jagdish and others, that when I went to New York to debate General Musharraf, the Pakistani Assembly embassy persuaded him not to do it, saying that you won't be able to match his arguments. So that argument that I would articulate, so make me out to be a controversial character and who has all kinds of views. As you know, there is no comparison between Hindutva and fascism or Hitler's treatment of Jews, because Hitler said that Jews were vermin, they were separate, they should be exterminated. Whereas we Hindutva people say that Muslims also have the same ancestors as us, their DNA is the same, so they are part of our family and they should accept that. So here we want to say inclusively that Muslims should consider themselves as part of the larger Hindustani society. And we don't say that somebody is a vermin or something like that. So, but that's inconvenient for them. And that's why this has happened. So what I have done is I have written to the External Affairs Ministry to ask our permanent representative to speak to the Under Secretary General. In the meantime, I have asked Ishkaran to prepare a legal notice to be sent to him. And if he doesn't withdraw, after making his own inquiries whether such a tape exists or not, if he doesn't withdraw, then of course I will file a defamation case against him. And it is not necessary that if
that he should get protection from the United Nations, saying that he cannot be subject to the jurisdiction of Indian courts because he has made this statement which is not connected with his policy. He has made it in his personal capacity, and the issuance of the press release is also in his personal capacity. So he has misused the office, and I'm pretty sure that I can drag him to court and sue him also in additionally for a sum of money unless he apologizes. And so let's see how it all goes. It should be very interesting. Sarju Rai is here. My old friend Jagdish, you want to give an introduction before we begin our discussion on corruption? Dr. Swami, Professor Arvind Chaturvedi will introduce Sarju Rai, and then we will start our normal program. Professor Arvind Chaturvedi. नमस्कार, विराट हिंदुस्तान संगम के इस चैनल पर ज्ञान गंगा वर्ड्स ऑफ विजडम के 49वें प्रकरण में आपका स्वागत है। आज का विषय है निहित स्वार्थ व भ्रष्टाचार। जैसा कि आप सभी को पता है, डॉक्टर स्वामी की पूरी राजनीतिक यात्रा भ्रष्टाचार के विरुद्ध रही है, और आज के हमारे जो गेस्ट दूसरे मेहमान हैं, उनका भी ये सिर्फ नहीं है कि उनकी राशि एक है, बल्कि उनका कार्य भी एक जैसा है। सरजू राय जी वर्तमान में विधायक हैं झारखंड विधानसभा में, बल्कि उन्होंने कुछ दिन पहले जो झारखंड विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को परास्त किया है, और अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने भ्रष्टाचार के अनेक कारनामे उजागर किए। और यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला कांड हो, चाहे मधु कौड़ा जी का लूटराज हो, उस सारा भ्रष्टाचार को उजागर करने का श्रेय सरजू राय जी को जाता है। लगभग 50 साल की उनकी जो राजनीतिक यात्रा रही है, उन्होंने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष किया है। तो आज के इस प्रकरण में सरजू राय जी का स्वागत है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और सरजू राय जी इस बात पर बातचीत करेंगे कि किस प्रकार निहित स्वार्थों के कारण राजनीति में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर स्वामी इसकी शुरुआत करें और उसके बाद श्री सरजू राय जी। डॉक्टर स्वामी। मैं शुरू में इतना ही कह दूंगा सरजू को कि हमारे प्रोग्राम में सारे हिंदुस्तान से लोग सुनते हैं, तो इसीलिए मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, और आप भी अंग्रेजी बहुत अच्छा जानते हैं, परंतु आप हिंदी में बोलिए ताकि हम दोनों का से सारा देश के लिए तसल्ली हो जाए या संतोष हो जाए कि हमने उनकी ख्याल की। First of all, Sarju, I want to tell our audience that we have known each other for a very long time, and certainly from Jayaprakash Narayan's Andolan time. You are one of his great active workers, or rather associates, and he used to name you openly as a man of the future and so on. And along with Ram Bahadur Rai and Govindacharya and some others. So you have been very strict in sense that your personal life also is very simple and straightforward. You've been in the RSS, but you have stood up for the values of RSS, but at the same time in the political stage you have stood up for what is right and what is wrong. And so I welcome you very much, and we all were thrilled when you got elected, and got elected on the anti-corruption thing, standing all alone in a faraway place in Jharkhand, where you fought the chief minister in his own constituency. You left your constituency and came and fought him. So you're seen as a bit of a hero here in the whole of India, and so welcome you. I want to ask you, I have 2-3 questions, and then later on we can continue the discussion with further interaction. The first question is that what is it that worries you about corruption? When there's people say corruption means, getting work done quickly, and what is the harm if you do it, and so on. Where do you see corruption hurting the state of Jharkhand or Bihar, where you earlier worked before the partition out of a separate state of Jharkhand? So
How do you see in the effect of corruption on society and the politics of India? सरजू राय, आपका माइक ऑफ है सरजू भाई, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। ये जो just press the M key. जस्ट प्रेस एम की M. हाँ, सुनाई दे रहा। हाँ, अभी सुनाई देगा जी। स्वामी जी, झारखंड एक छोटा राज्य है, बिहार से निकला है। एक धारणा लोगों में बनने लगी है कि करप्शन का विरोध करने वाले को ही परेशानी झेलना पड़ता है और जो करप्शन करते हैं उनके फेवर में एक बड़ी लॉबी, बड़ा ग्रुप हो जाता है। और मैंने 5 साल सरकार में रहकर जो एक्सपीरियंस किया है उसमें लगता मंत्री थे ना जी, मैं मिनिस्टर था कैबिनेट का, और मैंने 2 दर्जन से ज़्यादा भ्रष्टाचार के मुद्दों की ओर ध्यान खींचा इन लोगों का। इवन कैबिनेट के कई डिसीजंस का भी मैंने विरोध किया और मैंने यहाँ तक कहा कि भाई इस कैबिनेट के डिसीजन का सपोर्ट करके मुझे जेल नहीं जाना है। मैंने नोट ऑफ डिसेंट भी इन राइटिंग दिया। अब मुझे लगता है कि हम सभी इलेक्शन जीत कर आते हैं, कैबिनेट में जाते हैं, तो हमारा पहला मिशन ही हो जाता है कि किस तरह से हम अपने लिए पैसा बनाएं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसमें हम ऐसे ही पार्टनर खोजते हैं जो हमको कुछ दे सके। और इसीलिए जो लड़ाई लड़ता है इसकी, जो सामान्य आदमी लड़ते हैं, आरटीआई के माध्यम से कोर्ट में जाते हैं, वे कितना बड़ा खतरा मोल लेते हैं, जबकि हम लोग जब विधानसभा में हैं, कैबिनेट में हैं, तब भी हम अपनी आवाज़ वहाँ सुना नहीं सकते, लोगों को निर्णय नहीं होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री जब कैबिनेट में कोई बात रखता है तो कैबिनेट उसको नहीं सुनती है और जो काम गलत कर रहे हैं उनके फेवर में डिसीजंस होते हैं। अब कैबिनेट को पावर है रूल ऑफ एक्सिक्यूटिव बिजनेस में कि कैबिनेट कुछ भी कर सकता है। कैबिनेट में मैंने कहा मीटिंग में, तो ये लगता है कि मर्द को औरत और औरत को मर्द घोषित करने के बदले में तो आप सारा काम कर सकते हैं, 2 काम छोड़कर तुम ये भी कर दो। एक हमारी कलीग थी मिसेस नीरा यादव, मैंने कहा कि आज डिसीजन ले लो कि मिसेस नीरा यादव इज नॉट अ वुमन, शी इज अ मैन, तो ये तो हो नहीं जाएगा। तो कैबिनेट के जो पावर्स हैं वो पावर डिफाइन होने चाहिए। ये कैबिनेट में बैठकर हम कुछ भी कर लेते हैं और वेरी ऑफन हम लोग उसको कहते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल रूल्स हैं उसका आर्टिकल 235 को हमने शिथिल कर दिया, ख़त्म कर दिया, 245 में डिसीजन ले लिया। तो जो हमारे पावर्स नहीं हैं उसको वो भी करते हैं कैबिनेट में बैठ के। तो कैबिनेट को कैसे हम आंसरेबल बनाएं। दूसरा ये लगता है कि हमारा जो एंटी करप्शन लॉ है उसको कोई टीथ नहीं है, वो बेमतलब का, उसका रहना नहीं रहना बराबर है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं करेगी तो अब आप इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैं तो इस व्यू का हो रहा हूँ कि आप सभी की मदद मिलेगी तो एक प्राइवेट मेंबर भी झारखंड असेंबली में लाऊँ और मैं कहूँगा कि भाई कौन इसको सपोर्ट करता है कौन नहीं करता है, इसे क्लियर हो जाएगा। नेशनल पार्टीज भी हैं। और एक और सबसे बड़ी बात है कि पार्टियों के बारे में बड़े नेता और कहते हैं कि हमारी सरकार अच्छी सरकार और दूसरे की सरकार खराब सरकार। ये एक नारा जैसा हो गया है, हमारी सरकार कितना गलत काम कर रही है, ये अच्छी सरकार है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट थे अमित शाह जी, उन्होंने हम सभी को बुलाकर कहा कि हमारी सरकार अच्छी सरकार और दूसरे की सरकार खराब सरकार। तो कोई मेरिट पर हम नहीं सोचेंगे, दूसरे लोगों की सरकारें भी अच्छा काम कर रही हैं, कई काम अच्छा किया, तो जो अच्छा काम किया रिसीव करना चाहिए। तो हमारी जो एक तरह से पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम शासन में इसीलिए जाते हैं कि हम रूल कर सकें, हाई हैंडेडनेस कर सकें और फिर हम मनमानी कर सकें। जो काम सरकारी खजाना से लालू जी ने जो किया और मधु कोड़ा ने जो किया, 5 साल मंत्री रहने के बाद मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि इन दोनों को हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, क्योंकि दोनों के सामने उस समय की ब्यूरोक्रेसी ने सही चीज़ों को नहीं रखा। पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बने थे, कुछ काम उनसे गलत हो गए, तो उनको तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। और जब सारी चीज़ें होकर आ गई, कैबिनेट में सवाल उठाया जा रहा है और हम लोगों की सरकार सब बताने के बाद भी नहीं करती और नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट है, नेशनल लीडर्स भी ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बहुत थोड़े समय में देना चाहूँगा। 2003 में
रांची के हाई कोर्ट ने कहा कि रांची कैपिटल हो गया है, सीवरेज ड्रेनेज का यहाँ है ही नहीं, आप सीवरेज ड्रेनेज ठीक करो यहाँ का। उसके लिए टेंडर हुआ, ORG मार्ग वाले बहाल हुए। अब सरकार बदल गई, उसी पार्टी की सरकार है, चीफ मिनिस्टर वही है, मिनिस्टर बदल गया तो मिनिस्टर ने उनको एग्रीमेंट के कंडीशंस को तोड़कर हटा दिया और अपने मन से बहाल किया। सिंगापुर की कंपनी है मेनहार्ट बहाल हुआ। तो मैं तो उस पर एक किताब लिख रहा हूँ, करीब 125 पेजेस की किताब हो रही है और मैं इसको समर्पित करूँगा हमारे जो एक्स नेशनल लीडर्स हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, मैं उन्हीं को इस किताब को समर्पित करूँगा, क्योंकि 2006 से मैं इस मुद्दे को उठाता रहा। विधानसभा की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का मैं चेयरमैन था और मैंने बड़ी लंबी रिपोर्ट दी कि कितनी गलतियां हुई हैं इसको अपॉइंट कर। मेरी रिपोर्ट के ऊपर 5 इंजीनियरिंग चीफ्स की कमेटी बनी, उसने भी कहा कि मेरी रिपोर्ट सही है। उसके बाद विजिलेंस के टेक्निकल सेल ने भी उसकी जांच की, उसकी रिपोर्ट सही है। कोर्ट में भी मामला गया। अब कई बार कोर्ट किस तरह से विचार करते हैं और कितनी भूल कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर। तो एक ऐसा मामला है जिसमें जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं कि सारे फैक्ट्स हैं, सारे प्रूफ्स हैं, इसके बाद भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई एक आदमी पर, किसी पर नहीं हो सकी। तो जब इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी तो उसका नतीजा ही होगा। एक शेर है एक शायर का कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक मोमेंट में हम गलती करते हैं और डिकेड्स उसको भुगतता है। तो ऐसी कई घटनाएं हैं। रांची का सीवरेज ड्रेनेज 2003 में जैसा था उससे आज बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, फिर भी तब भी हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अपने नेशनल लीडर्स को, फॉर्मर नेशनल लीडर्स को मैं कहूँगा कि मैं 2005 से इस बात को उठा रहा हूँ, सभी के पास रहा हूँ। कहा जाता है संघ के कार्य में जो लगे हैं कि गुणों की चर्चा सर्वत्र और दोषों की चर्चा उचित स्थान पर। तो मैंने तो कोई भी उचित स्थान नहीं छोड़ा जहां मैंने इस दोष की चर्चा नहीं की। आज तक तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर हम कथनी को करनी में नहीं उतारेंगे, ये केवल स्लोगन रह जाएगा कि गुणों की चर्चा सर्वत्र और दोषों की चर्चा उचित स्थान पर। कोई डिसीजन ही नहीं रहा, कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो करप्शन के मामले में सोसाइटी बहुत परेशान है, क्योंकि उनको लगता है कि हम ऑर्फन हो गए हैं। हम जिसको इलेक्ट करते हैं वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता है और वेस्टेड इंटरेस्ट के फेवर में काम करता है। सबूत तैर रहे हैं, उसको पकड़ के कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है। सारे इंस्टीट्यूशन इस तरह से हो गए हैं तो वेस्टेड इंटरेस्ट के फेवर में हो गए हैं। और वेस्टेड इंटरेस्ट, मैंने एक और इशू रेज किया है कि मैं जब सरकार में था तो मेरी जासूसी होती थी। उसके बाद मैं इसके भीतर गया तो पता चला कि हमारे यहाँ जो स्पेशल ब्रांच है जो खुफिया गिरी करता है, उसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ने एक पैरेलल ऑफिस खोल लिया था और जो इलीगल ऑफिस था और उस इलीगल ऑफिस को हवाले कर दिया था एक प्राइवेट आदमी को। और वो प्राइवेट आदमी सरकार के उस तंत्र को कंट्रोल करता था, जहाँ 8 कंप्यूटर लगे थे, 3 DSP बहाल थे, 12 इंस्पेक्टर्स बहाल थे, ये सभी काम करते थे। तो मैंने अभी के DGP को लिखा, भाई मुझे सूचना मिली कि मेरी जासूसी होती है, मैंने 2 बार जासूसों को पकड़ा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तो मेरी सूचना है कि ये हो रहा है, इलीगल ऑफिस बिना किसी ऑथराइजेशन के चल रहा है। और उसने जांच कराई और जांच कराने पर यहाँ के अखबार लिख रहे हैं कि मेरी एक एक सूचना सही पाई गई। तो जब इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करके हमारी जो प्राइवेसी है, निजता है, उस पर हमला होते रहेगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आज हम झारखंड जैसे राज्य में इस लेवल पर आ गए। सिलसिला चलता रहेगा, पब्लिक ही अल्टीमेट लूजर है और पब्लिक ही परेशान हो रही है। अब ये कई सवाल खड़ा करते हैं, हम कहाँ जाएं, जुडिशरी में जाएं, वैसी स्थिति होती है। ब्यूरोक्रेसी तो पार्ट एंड पार्सल हो गई है और लेजिस्लेचर तो अब कैप्टिव हो गया है रूलिंग पार्टी का। इसलिए लेजिस्लेचर का तो लगता है कि रिलेवेंस ही खत्म हो गया है। तो ऐसी स्थिति में कई बड़े सवाल उठते हैं जो आप जैसे लोग हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उठा सकते हैं कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो इस सेंस में किस तरह से थ्रोटल की जा रही है, लोगों का वॉइस
लोगों की एगोनीज, उनका दुख है, दर्द है, कोई सुनने के लिए इस मामले में तैयार नहीं है। तो एक ग्रुप बन जा रहा है वेस्टेड इंटरेस्ट के फेवर में, और वह ग्रुप ही सब पर रूल कर रहा है। और हमारे जितने लॉज हैं, CRPC, IPC हैं, जिसमें मैं तो गवाह हूँ, मैं मिनिस्टर था और मैंने जमशेदपुर, हमारी एक कंस्टिट्यूंसी है, उस कंस्टिट्यूंसी की एक घटना का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर दे, इसके लिए DGP ने 3 बार सीनियर SP को लेटर लिखा कि भाई जो मांग कर रहे हैं उसका इन्वेस्टिगेट करो, उनको बताओ। आज तक नहीं हुआ। हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक मामले में 4 साल से होम सेक्रेटरी ने 8 रिमाइंडर दिया कि ये इशू है, जिसमें तय हुआ था कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इसको और डिप्टी कमिश्नर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब होम कमिश्नर की बात जब डिप्टी कमिश्नर नहीं सुनेगा, जिला का कलेक्टर नहीं सुनेगा, और DGP की बात को सीनियर SP जिले में नहीं सुनेगा, तो कौन, हम कैसे कर सकते हैं हम किसी रूल को इन्फोर्स करा सकेंगे? और इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो जब हम लोगों के जैसा आदमी इतनी परेशानी झेल रहा है, तो कॉमन मैन की क्या स्थिति है इस मामले में? वो बिल्कुल चारों तरफ वेस्टेड इंटरेस्ट, आज गवर्नमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट्स टोटली वेस्टेड इंटरेस्ट के चंगुल में हैं, उनकी मुट्ठी में हैं, वो डायरेक्ट करते हैं। और एक नई बात आ गई है, बिग 4 कहे जाते हैं, दुनिया भर के 4 ऑडिट अकाउंट्स की फर्में हैं, ये सब जम गए हैं यहाँ पर। और अब यही सरकार के आंख कान हो गए हैं। गवर्नमेंट के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, वो तो बस उनको पेपर पर साइन करना है, उनका नाम आप सभी जानते हैं, लेना ठीक नहीं होगा। ये सबके से उनके कई कारनामे को मैंने उठाया है, उजागर किया है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इंटरनेशनल फोर्सेस अब नया तरीका हो गया है। हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, 1991 से आप लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया था, मगर वो रिफॉर्म्स अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ बैठ जाएंगी और हमारे जो लोकल ऑफिसर हैं उनको माना जाएगा ये तो कूप मंडूक हैं, ये कुएं के मेढक हैं, इनको बहुत जानकारी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी जानकारी हम रखते हैं, हमसे लो, और वही करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं। मैंने इनके बारे में कहा था कि कंसल्टेंट ऐसे हैं कि हमारी घड़ी लेंगे और घड़ी ले कहेंगे देखो इसमें 12 बज रहा है, ये मैंने तुमको बता दिया। तो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी ब्रीफिंग सब लेते हैं यहाँ के ऑफिसर से और रास्ता बताते हैं कि ये रास्ता हो गया। तो पूरी गवर्नमेंट सबसर्विएंट हो गई है ऐसे इंस्टीट्यूशंस के। तो अगर इस तरह से हमारा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस दिशा में जाएगा तो बस इसको रोकने की ज़रूरत है। इसलिए बहुत गंभीर मामला हो गया है जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से एक्सपीरियंस करता हूँ। मैं हमेशा फाइट करते रहा हूँ, उचित स्थान पटकते रहा हूँ, और आज भी आगे क्या होगा जो हो, मगर 4-4.5 साल समय मेरे पास है एज ए लेजिस्लेचर के मेंबर के नाते। तो मैं तो करूँगा, इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़े, और खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं 2009 का चुनाव इसलिए हार गया कि उस समय मैंने मधुपुरा का मामला उठाया था, मेनहट का मामला उठाया था। हमारी पार्टी के आधे लोगों ने, हम लोगों ने भरोसा किया, हमारी पार्टी है, खिलाफ किया, मैं 3000 वोट से चुनाव हार गया। इस बार 5 साल तक मैंने करप्शन का इशू उठाया तो मुझे टिकट ही नहीं दिया लास्टली। तो हम लोग तो, मैं तो, मेरे जैसे आदमी तो आज भी, हम संघ के स्वयंसेवक बने तो संघ की के जो का जो आधार है, उनकी जो बातें हैं, हम लोग आज भी उसमें भरोसा करते हैं, काम करते हैं। और अब संघ को देखना चाहिए कि उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अनुषांगिक क्षेत्र हैं, उसके बड़े नेता इसका कितना पालन कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि संघ को किसी एक पार्टी के सपोर्ट में नहीं दिखना चाहिए, और बेहतर हिंदू समाज के लिए जो भी उनके मुद्दों को उठाए, वो किसी भी पार्टी में है, आइडियोलॉजी कोई भी हो, अगर इस मुद्दे को उठाता है तो संघ को उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। इसलिए बीजेपी के गले में संघ का पट्टा बांधकर बहुत दिन तक चला जाएगा तो हिंदुत्व को भी नुकसान होगा, देश को भी नुकसान होगा, और संघ की भी विश्वसनीयता इससे घटेगी। जी Sanjay, today young people want to join politics in much larger number than when I was their age. So in 1970s when I joined politics, people said, what madness you have done, you had such a lovely professorship at Harvard, you left it and come, what for, and all that. Today a large number of young people want to join politics, and they are also idealistic. They want to fight corruption, crime and all that. I want to know from you,
you did something which was unimaginable to outsiders. Whether it was imaginable to you or not is another matter. You were targeted by the party. They denied you the ticket after keeping you in the limbo for some time, and then you went to a new constituency. And I know you live like a sadhu. You don't have any money. There's no. You don't have any foreign bank accounts, nothing. And yet you stood there and defeated the chief minister. Now that gives faith that it is possible to fight against corruption and still have the public support. 99% of the time the advice given is, without this kind of collection of money and all, you can't do politics. Who will fight the election? Who will finance it? And so on. What is it? What advice would you give youngsters who want to come to politics and want to be like Sarju Rai? ये बड़ी संख्या में नौजवान आना चाहते हैं और मैं तो अचानक 15 दिन में इलेक्शन मैंने लड़ा, वहाँ के यूथ फोर्स ही मेरे लिए खड़ा हुआ। अच्छा। और वही स्थिति थी जैसे 1977 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, इमरजेंसी रहते हुए भी, या वीपी सिंह के समय में इलेक्शन हुआ था जिसमें पब्लिक आगे आ गई थी और लोगों ने वोट भी दिया, नोट भी दिया। कितनी कोशिशें हुई कि कास्ट बेसिस पर डिवाइड करें सोसाइटी को, डिवाइड नहीं हुए, खुद खड़ा हुए। इसलिए मैं तो एक स्ट्रीम था पीपुल का, खास करके यूथ्स का। मैं तो वो जिधर ले जाते थे उधर जाता था, इतना ही मैं करता था। मैं तो एक सिंबल हो गया था उनका। और पूरी लड़ाई नौजवानों ने लड़ी, उम्मीद के साथ लड़ी। मगर जब हमारे सिद्धांत व्यवहार की कसौटी पर आते हैं, थ्योरीज को हम प्रैक्टिस में लाते हैं, तब यूथ्स देखते हैं कि कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं और उन लंबे समय तक वो उसको स्टैंड नहीं कर पाते हैं। इस कारण से उनके मन में निराशा भी हाथ लगती है। फिर देखते हैं कि साहब इतने दिनों तक हमने किया, न कुछ बदलाव हुआ, न कुछ मुझे ही मिला। तो एक न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, कुछ नहीं मिला। थोड़ी निराशा होती है, मगर यूथ चाहता है बदलाव। और सबसे अधिक, चाहे रूरल यूथ से, अर्बन यूथ से, उसको यही लगता है कि लोग साफ बातें कहें। और मुझे भी लगता है कि अगर हम ये तय कर लें कि हम सही बात करेंगे, भले ही अगला इलेक्शन हम नहीं जीत पाएं, या कोई सरकार आती है वो सोचे कि हम अच्छा काम करेंगे, भले हमारी गवर्नमेंट अगली बार नहीं आए, इतना रिस्क लेंगे हम, तो काम यूथ का हो सकता है, यूथ आगे आ जा सकते हैं। अगर आज तो हम लोग जिस दिन सरकार बनाते हैं उसी दिन से सोचने लगते हैं कि अगले 5 साल बाद हम फिर कैसे चुन कर आ जाएं। तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं और हमारे जो काम होते हैं उसके बेसिस पर होते हैं। तो इसलिए यूथ हमेशा ही चीटेड फील करता है। तो इस तरह के लोग सामने आए जिसको पॉलिटिक्स को अपना कैरियर नहीं बनाए, हमारा कैरियर नहीं है, हम अगला चुनाव हार जाएंगे, हमारी सरकार बनी, अगली बार नहीं आएगी, मैं मिनिस्टर चीफ नहीं रहूँगा। ये बात अगर यूथ के बीच में जाएगी तो इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा इसको। इसलिए आज नौजवान बहुत दृढ़ता के साथ राजनीति में आना चाहता है, मगर उनके पास जो इन्फॉर्मेशंस जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन में तय करना बड़ी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और सबसे बुरी हालत आज जो कैडर या वर्कर्स हैं, जो पार्टियां हैं, नेशनल पार्टीज हैं या स्टेट की पार्टीज हैं, वो तो लगता है कि जैसे अफीम की तरह, अफीम खाकर हम कहते हैं कि जो ठीक है साहब, हमारा दायित्व तो होता है कि हम उसको बताएं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और जो ग्राउंड रियलिटी बताएगा वो कल से पार्टी के पोस्ट से भी हट जाएगा, अध्यक्ष भी नहीं रहेगा, मंत्री भी नहीं रहेगा, कार्यकर्ता भी नहीं रहेगा। ये स्थिति हो गई है। इसलिए आज पार्टियां वेस्टेड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने लगी हैं, ये मुझे लगता है। और रोज लोगों से बात होती है, यूथ के सामने आगे हम कैसे कदम बढ़ाएं और कौन हमारे कदम को सहारा देगा। इसलिए ऐसे वॉइस है, आपकी वॉइस है, मेरी वॉइस है, जहाँ से भी बात उठती है तो लोगों को लगता है कि चलिए आंधी में, तूफान में भी एक दिया जलाने का काम हो रहा है, रोशनी चल रही है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि मैं यूथ्स के लिए इतना ही स्ट्रेंथ दे पाता हूँ। वही एक छोटी सी किरण है, बड़ा अंधकार है, मगर उम्मीद इससे बननी चाहिए और अधिक से अधिक लोग खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं। जी, अरविंद से पूछने के पहले एक और सवाल पूछता हूँ। मैं आपको 45 साल से जानता हूँ और कई बार आप अकेला हुए,
और कई बार मुझे आपके मित्र मुझे कहते थे कि देखो जिस अकेला पड़ गया है सरजू राय, और सडनली आप दोबारा उसी जो गंगा है उसमें आने लगे, यानी मेन स्ट्रीम जिसको कहते हैं उसमें आप आ गए। तो आप नौजवान को क्या कहेंगे कि घटनाएं घटेंगी, उसकी इंतजार नहीं करनी चाहिए, जो आप सही समझते हैं वही करें, तो अपने जैसे कृष्ण भगवान ने कहा आपके कर्म के आधार पर जो परिणाम आएंगे वो आएंगे, तुम उसको तय नहीं कर सकते हो। ऐसे आप लोगों को क्या किस प्रकार से प्रेरित करोगे कि राजनीति में आओ और ये सारा बर्दाश्त करो, ये कैसे आप उनको प्रेरित करेंगे? मैं तो आस्थावादी हूँ, ईश्वर में भरोसा करता हूँ और ये मानता हूँ कि भगवान ने इस दुनिया में हमको भेजा है तो हर आदमी के लिए काम भी असाइन कर दिया है कि तुम्हारा काम ये करो। और इस काम करने में हमसे गलती हो सकती है, जब हम काम करेंगे गलती हो सकती है। मैं लोगों को भी कहता हूँ तुम मंत्री हो, अफसर हो, तुमको काम करना है तो काम करते समय तुमसे गलतियाँ हो सकती हैं, और कोई पॉइंट आउट कर देता है कि भाई आप तुमने ये गलती कर दिया तो सुधार लो, कोई करप्शन वही खत्म हो जाएगा। तो जब बार बार कहते हैं गलती हो रही है, गलती को छुपाने के लिए दूसरी बड़ी गलती, फिर उसको छुपाने के लिए तीसरी बड़ी गलती, फिर मीडिया के माध्यम से जनता में मिस इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें होती हैं तो करप्शन स्ट्रेंथन होता है। इसलिए जो यूथ्स हैं उनको भी, जैसे आपने भगवान कृष्ण की बात कही, मोदी जी भी उसी तरह से साक्षी भाव से बात करते, किताब इन्होंने लिखा है साक्षी भाव, यानी हम काम करने वाले हैं, फल क्या होगा क्या नहीं होगा कोई चिंता नहीं है। मगर जब यूथ देखता है कि जो आदमी काम कर रहा है, काम करने में फल ही प्रमुख है उसका, हम ये काम कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मैनेजमेंट के आज कई सिद्धांत हो गए हैं, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं कि ऐसा करो, तो आज तो हमारी नई पीढ़ी इसी तरह की शिक्षा ग्रहण कर रही है। इसलिए आज ज़रूरत है कि ऐसे फोरम से, आपका फोरम जिस तरह से है और अदर फोरम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस को हम कैसे मजबूत बनाएं। इंस्टीट्यूशंस आज दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं और सरकारें इसको कमज़ोर करने में लगी हुई हैं। इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगे तो यूथ को उससे ताकत मिलेगी, प्रेरणा भी मिलेगी। इसलिए हर यूथ को जब दुनिया में आया है इस वक्त, तो उसका जो काम है वो असाइंड है, जो होना है वो होगा, हम लोग मानते हैं, हम अपना काम करते रहें। अल्टीमेट क्या होगा काम नहीं करेंगे, ये बात मैं यूथ को करता हूँ। आज हमारे साथ वही कहता हूँ कि तुम्हारा काम है, व्यक्तिगत काम है, जरूर पैरवी मैं करूँगा, मगर उसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ तुम्हें तुम्हारा काम है, कर ही दूंगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तुम्हारा नहीं हो सकता है। मेरा काम है तुम्हारी बात सही है तो उसको ठीक जगह रखना। मैं तो अपने अफसरों से, जो पुलिस के हैं, IAS के, उनको भी कहता हूँ भाई आप लोग तो ऐसे हो गए हो। इंदिरा गांधी जी ने कहा था एक बार कि इमरजेंसी में तो मैंने कहा था कि झुको और तुम रेंगने लगे। तो आज तो सर्विस में आते ही रेंगने लग रहे हैं SDO और DC लेवल से। और आज भी मेरा ये भरोसा है कि समाज में भी अच्छा काम करने वालों की संख्या मेजॉरिटी में है। अफसरों में भी, पुलिस और प्रशासन के अफसरों में भी अच्छा काम करने की नीयत से काम करने वालों की संख्या मेजॉरिटी में है जी। मगर जो मर्म स्थल है सरकार में, उस पर प्रभाव माइनॉरिटी का है जो गलत काम करने में भरोसा रखता है। इसी कारण से सभी परेशान हैं। जो सबसे बड़े लेवल पर है, पावर उसके हाथ में, वही परेशान है, और जो सामान्य लोग हैं वही परेशान है। इसलिए भरोसा करना पड़ेगा कि एक दिन समय आएगा जब अच्छी चीजें होंगी और इसको ही देखकर आगे बढ़ना चाहिए। Arvind, Sarju Rai ji, Dr. Swami, both of you can answer my question. In fact, it is more observation than a question. You talked about the cleaning of politics by bringing good people into politics, young people into politics. We put so many restrictions. There's a saying that bad currency drives out good currency out of circulation. The same thing is true about India. In fact, Indian politics is like the river Ganga. हम जितना भी साफ करने का प्रयास करते हैं वो गंगा उतनी ही गंदी होती जाती है. One student of mine who is a senior officer in a public sector company, he wants to enter politics, but he says, my hands are tied, I'm not allowed, government employees cannot participate. So even if we have good people who are in public sector or who are in government, can we do something that wherever they are,
they can have some kind of participation and help in cleaning the politics. सज्जो, देखिए, मुझे ये लगता है, मैं एक बात स्वामी जी 2 मिनट में कहना चाहता हूँ हाँ बोलिए आप। कि आज हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जो टॉप पर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर मोस्ट, जजेस हैं, आर्मी के लोग हैं, ये जब रिटायर करते हैं तो कोई तो 2 साल 3 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए, और रिटायर करने के तुरंत बाद उनको कोई ना कोई पोजीशन हम दे देते हैं। पहले तो ये सुधार करना पड़ेगा। फाइग एंड में रिटायरमेंट के जस्ट पहले अगर उनके मन में होगा कि हमको कुछ आगे मिलेगा तो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो काम करेंगे, सरकार के हिसाब से काम करेंगे। इसलिए एक तो कूलिंग पीरियड हो जानी चाहिए कि टॉप मोस्ट पोस्ट है, कोई जनरल है, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है, कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, वो 3 साल तक तो भाई कूलिंग पीरियड में रहे। उसके बाद समाज का काम करना हो तो आगे आए और करे, और नहीं तो बीच में नौकरी छोड़ दे और आए। दूसरा, हम लोग देखते हैं कई अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, मगर जब आ जाते हैं तो देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम है पॉलिटिक्स का, उससे अलग रहोगे तो बिल्कुल अलग रह जाओगे, तो मेन स्ट्रीम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। नहीं, Arvind, I would say the only way you can motivate people, I'm telling you this, there's no other way, according to me, which will make people work for good causes, is to follow that Gita principle. In this life, you have only freedom to act, but you have no way you can connect your act to the objective that you are fighting for. That is the achieving that objective is not in your hands. You can have an objective, you can fight for that objective, you can try to go towards that objective, but whether you'll attain it or not, don't be disappointed if you can't, because as in Gita, Krishna says, that is not for you to decide, that is for me to decide. If you have that kind of faith, then it is possible. And I've found in my life, I've done things where people thought I'm finished, this is the end of me, and suddenly some new event happens and I'm back in business. So this faith we have to instill in schools to our people, that you must strive, but don't be attached to the result of your striving. I think we have lost connection of Sarju Rai ji. Jagdish, you can ask a question to Dr. Swami. In the meanwhile, he may be trying to get it connected to us. Jagdish, mic, please. We are coming to the end of our program. Yeah, we are almost there. Sarju Rai, because of technical problems in Ranchi, where he is at the moment. So we thank Dr. Swami and Sarju Rai for having participated in this very important discussion on vested interest and corruption. I only wish to add that, there is a lot of occupational hazards and various vested interests when we are fighting corruption. It's not that it's, if it was everybody was successful fighting corruption, then that would have been a way of life. Yes, that's right. Everybody have fought, yes. Everybody would have fought corruption, but there are so many pressures, pulls and all that. In fact, Dr. Swami, when we look towards you and look towards people like Sarju Rai, we really salute you in spite of Sarju Rai's back. When we look at Dr. Swami and Sarju Rai type of people, we salute them because in spite of all the hazards of life and occupational hazards, both of you all have been calm and consistent with your ideology of fighting corruption. Sarju Rai perhaps started with the total Sampurna Kranti movement of Jayaprakash Narayan, and since then the undivided state of Bihar and then now Jharkhand. You all have been both consistently, and whatever may be the results, you all have been doing it and maintaining the flag of and as anti-corruption crusaders. So we wish you both best of luck. Unless Sarju Rai had lost contact with our mic, आप अगर कुछ कहना चाहेंगे, हम ये समापन में. समापन में. हाँ,
Ramesh has some question. Yes, Ramesh is there. It's again, like Arvind, it's more of an observation. Based on what Dr. Swami and Sarjaraji said, it reminds me of a shloka in Gita, in each chapter. It says, Tasmat Parveshu Kaleshu. Mam Anusmara Yudhyacha, keep fighting. Just leave the burden on me and keep fighting. So that, I mean, that is the message we get. I mean, it's pretty much in Gita. And so that's what I get from what Dr. Swami said. Absolutely. That's exactly what I mean. सरजुराय, आप कुछ लास्ट सेंटेंस कुछ कहना चाहेंगे? आप M दबा दें, आप म्यूट है, आपका म्यूट हो गया। आप M दबाइए। M दबा दीजिए। जी हाँ बोलिए, समापन में कुछ कहना है? तो नहीं, आप रहते हैं तो आपको सुनना ही अच्छा लगता है, उसमें से ही हम लोग कुछ डिराइव कर लेते हैं, जो बोलना है बोलते रहते हैं हम लोग बाहर में जाकर। बातें सुनने से जो मिलता है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं बाहर। जो आपने किया आपने करके दिखा दिया, एक चीफ मिनिस्टर को हरा दिया अकेला खड़े होकर। अब बहुत आसान है कहने के लिए, नौजवान ने कहा इधर चलो, मैं वहां चलेगा। नहीं, ये इसको कहते हैं आशीर्वाद है भगवान का कि आपने सही काम किया और के साथ अन्याय हुआ उन्होंने ठीक किया आपके लिए। जी 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 जी। और ये विश्वास होना चाहिए। हमारे हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व यही है कि मैं अपना निष्ठा के प्रति अडिग रहूंगा और फल मुझे आना नहीं जाना ये सब भगवान देखेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। With that note, we will end today's episode. Ours was a 49th episode is the lockdown series of Gyan Ganga Words of Wisdom. We'll be back tomorrow at the same time, 8 p.m. For our Golden Jubilee episode. Tomorrow's topic is India's national security issues, Pakistan as a terror state. Our guest tomorrow, besides Dr. Swami, is Mr. Raju Chandrasekhar, Member of Parliament. So we'll have a very interesting discussion on this important topic tomorrow between Dr. Swami and Raju Chandrasekhar ji. So with this, we end today's program, reminding our viewers, please join Virat Hindustan Sangam. You'll keep on asking for the website. I keep on telling you, and please note it. Our website of Virat Hindustan Sangam is www.vhs. That is the short form of Virat Hindustan Sangam, vhsindia.org. And please join this movement started by Dr. Swami, www.vhsindia.org, and be part of this great movement. I thank our team of Ramesh Swami, Professor Arvind Chaturvedi, our behind the scene team led by Ashish Shetty, Swaminathan, Ishwar Iyer, then Tejas and Rakesh from Bangalore for their constant support to put the work together. I also thank Natraj Shetty from Mumbai for his various inputs for today's program. So with this, we end our today's program. Thank you.